Good morning, student. Today we are going to start and continue our selection topic of chapter number 6, staffing. In the previous video, selection total have 8 steps. In the previous video, we are discussing about the 4 topics first. The first heading is about preliminary screening, in which we are screening the complete collected data to whom is a call for an interview and selection test. The second one is selection test, जिसमें हमने 5 तरह के टेस्ट पढ़े थे, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट. द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जिसमें एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल चलता है जहां पर what is the nature of employee, how much he is ready to take the decision, and discussion on his past experience. The next is reference and background check, where we check out those person who give the reference of the particular person, what is the background, what is his history of family and all of that. Now we are discussing in this topic the remaining 4 topics of selection. The first जो आज हम पढ़ेंगे, that means तो आज का first है और वैसे 5th point of the selection test, that is selection decision. After taking so many tests of a candidate, after taking so many questions or formal or queries, we are deciding the one who are finally selected for our organization, who is working for our organization, that is called selection decision. The final decision has to be made from among the candidates who has passed the test, interview and reference check. The views of the concerned manager will be generally considered in the final selection, because it is the final selection and who is responsible for the performance of the new employee. The 6th point, that is very important for all the organization, that is medical examination. मान लीजिए मैंने एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करा और उसकी ड्यूटी जो है मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में so much noise of machines, और जो पर्सन मैंने सुपरवाइजर सेलेक्ट करा है, he has a problem of cardiac muscles, that means उसको हार्ट डिसीज है, हार्ट अटैक हो रखा है. तो आपको पता है हार्ट अटैक के लिए प्रिकॉशन सही रहता है कि शोर शराबे मशीनों की आवाज़ों से थोड़ा गैप बना के रखना है, हाई साउंड में ज़्यादा नहीं टाइम बिताना. तो एक वैसा पर्सन मैं किसी को भी नहीं सिलेक्ट कर पाता अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफ़ ही हैज़ कार्डियक प्रॉब्लम, और अगर उसका जो वर्किंग एरिया है वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर लॉट ऑफ नॉइज है, देन इट विल इफेक्ट हिज हेल्थ ऑल्सो. एंड इफ something uncertainties happen with the employees, then organization must be responsible and have to pay the compensation for his family and the legal hire. So this kind problem, so medical examination is compulsory before selecting any person. So after the selection decision and before the job offer is made, the candidate is required to undergo a medical fitness test. The job offer is given to the candidate being declared fit आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल. अगर वह कहीं ना कहीं कुछ उसमें कुछ मेजर डिसीज है तो हम उस ऐसे कैंडिडेट को नहीं रखते, बिकॉज कंपनी को मेडिकल इंश्योरेंस भी अपने एम्प्लॉयज को देना पड़ता है एज पर लीगल रिक्वायरमेंट इज देयर. द 7th स्टेप एंड दैट इज जॉब ऑफर. नाउ दिस इज द सेकेंड लास्ट स्टेप कि जॉब ऑफर दिया उसको हमने. जॉब ऑफर का मतलब एक मेडिकल में टेस्ट में क्लियर हो गया, ही इज अप टू द मार्क ऑफ माई डिजायर, ही हैज द नॉलेज अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर, ही हैज अ स्किल ऑफ आवर डिजायर, सो वी हैव सिलेक्टिंग एंड गिव देम अ जॉब ऑफर. सो द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज जॉब ऑफर टू दोज एप्लीकेंट्स हु हैव पास्ड ऑल द प्रीवियस हर्डल्स. हर्डल्स का यहाँ से मतलब टेस्ट और प्रोसीजर सिलेक्शन के स्टेप्स हैं. His acceptance, such a letter generally contains a date by which appointed must report on the duty. We give them complete 1 week or 7 days gap before selecting, because उसको previous जहाँ पर organization है वहाँ पे भी उसको previous notification देना पड़ता है, previous notification, तो तभी वो जो है वहीं से NOC, that means no objection certificate offer होने के बाद ही job offer होती है. To be given the reasonable time for reporting. The next is contract of employment if any.
कोई सा भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी लीगल हो, कि जैसे आप 2 साल से पहले हमारे इंस्टीट्यूशन की जॉब नहीं छोड़ सकते, या आफ्टर पासिंग ऑफ द 7 months ऑफ प्रोबेशन या 6 month ऑफ प्रोबेशन पीरियड वी विल गिव यू कंफर्मेशन पीएफ के रिगार्डिंग, सैलरी के रिगार्डिंग, या कुछ भी अनाउंसेस कितने मिलेंगे, रेंट अलाउंस मिलेगा कि नहीं, कार अनाउंस मिलेगा कि नहीं, या प्रमोशन कितने देर बाद मिलेगा, ये सभी चीज़ें जो हैं अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कुछ दोनों के बीच में कुछ समझौता है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, तो यहाँ पर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल होना चाहिए. आफ्टर द जॉब ऑफर हैज बीन मेड and candidate accept the offer, certain documents need to be executed by the employer and the attestation form. This form contains certain vital details about the candidate which are authenticated and tested by him or her. Attestation form will be a valid record of future references because now अब गवर्नमेंट ने तो अब तो अप्रूवल कर ही दी गया कि सेल्फ अटेस्टेशन इज द अप्रूवल. अब नोटेरी से अटेस्टेड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एजुकेशनल एक्सपीरियंस होते हैं, कि सब रियल हैं, देयर इज़ नो फेक. अगर इस तरीके से कुछ फेक अकाउंट या फेक अपना एक्सपीरियंस दिखाता है और वो फिर पकड़ा जाता है, तो कंपनी कैन अस्यू अ केस अगेंस्ट दैट कैंडिडेट. सो देयर इज ऑल्सो नीड फॉर प्रिपेयरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Basic information that should be included in the written contract, and employment will be vary according to the level of the job. That means contract of employment can vary. Vary का मतलब different हो सकता है, एक employee के लिए कुछ और condition है और दूसरे के लिए कुछ और. That is up to the post of the candidate. But the following checklist set out the typical headings: job title, duties, responsibilities, date, continuous. The requirement starts on the basis of calculating services, his pay, his allowances, his rates of pay, working hours, leaves, rules, sickness, grievance procedures, their employment fund, disciplinary procedure, how much % of salary is increased every year, and what is the rules of the termination of employment, and how if he leave the organization, how much time he give the notice to the organization. Because अगर आप मान लीजिए कंपनी का है कि 3 महीने पहले आपको अगर जॉब छोड़नी है तो 3 महीने पहले नोटिस पीरियड देना होगा, तो 3 महीने तक तो एक तो आप जॉब कंटिन्यू करोगे और आप उस सैलरी के लिए एप्लीकेबल हैं. अगर आपने इमीडिएट कह दिया जी कल से मैं जॉब पे नहीं आऊँगा, तो जितने पिछली आपको कुछ पनिशमेंट है या पिछला जो फाइनेंशियल आपको पनिशमेंट है वो आपको, या कोई पीएफ फंड वगैरह है तो उसमें कुछ डिडक्शन करने के बाद ही कंपनी आपको पे करती है. दैट वाज रूल, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. एवरीथिंग इज रिटन, एवरीथिंग इज क्लियर. सो कहीं पे भी कोई हिडन चीज नहीं होती. सो these are the topics of today. We discuss these 8 topics. अब इसमें देखिए बोर्ड में किस तरीके से आ सकता है ये टॉपिक. बोर्ड में जो अभी रिसेंटली आया था, नेम दैट स्टेप आफ्टर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक बट बिफोर द जॉब ऑफर. तो यहाँ पे आपको 1 मार्क में 2 ही नाम लिखने थे, सिलेक्शन, डिसीजन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, और इसे एक्सप्लेन करना था. ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये 1 मार्क में आया था. अब इसी की अगर वो डिटेलिंग मांग लेते तो ये किस क्वेश्चन में फॉर्म हो जाता, 3 मार्क में. अगर पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आता है दैट इज योर 6 मार्क्स में. तो इसमें आप लोग देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन रहा है इसमें, 3 मार्क का भी और 6 मार्क का भी. इफ दे आर आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ हाउ मच स्टेप्स is taking place between reference and background check and job offer, then there are 2 steps: decision making and medical. This is the 1 mark. If they are if the examinee is asking about the explanation of the, then it becomes 3 mark question. If the complete process is coming, then it is a 6 mark question. Now come to the type of test. There are, I am taking a revision of this topic because this is the important topic of your examination point of view. ओके, लुक एट द फर्स्ट टेस्ट. अभी यहाँ पर टेस्ट आ गए, यहाँ पर एक बार हम टेस्ट को फिर रिवाइज कर लेंगे क्योंकि आज ये टॉपिक बस फिर खत्म हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस का. यहाँ पर जो फर्स्ट टेस्ट हम लोग ले रहे थे इसको कीवर्ड से लर्न करना है. दैट इज फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंस टेस्ट. अब इंटेलिजेंस टेस्ट होता क्या है, यहाँ पर एक आया इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर आया एप्टीट्यूड टेस्ट. इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है? इंटेलिजेंस टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पर्सन की डिसीजन एंड जजमेंट पावर पे होता है. यानी जो इसका कीवर्ड है आप नोट कर लीजिए, डिसीजन एंड जजमेंट. देखिए ये 1 मार्क में आ सकता है. नेम द टेस्ट विच आर लुकिंग आफ्टर द डिसीजन एंड द जजमेंट पावर ऑफ अ सिलेक्टेड एम्प्लॉय. सो दैट इज वी आर आस्किंग अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट. नाउ द सेकेंड टेस्ट दैट कम्स ऑन द वे, दैट इज aptitude test.
एप्टीट्यूड टेस्ट इज पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल, कि वो नई चीजें कितना सीखने में इंटरेस्टेड रहता है। ये नहीं है कि वो लगेगा बरेगा अरे जो है ठीक है, बस इंटरेस्टेड नहीं है। इफ ही हैज पोटेंशियल ऑफ लर्निंग ऑफ न्यू थिंग्स, that means this measure can be taken between in the aptitude test. The next is personality test, that means their behavior. Personality test, that means their behavior, nature and etc. ठीक है, उसके बारे में देखना कि एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से, ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, हाउ इज द मेच्योरिटी लेवल, हाउ ही कैन अंडरस्टैंड, हाउ ही कैन डील विद द सिचुएशन। द नेक्स्ट इज ट्रेड टेस्ट. ट्रेड टेस्ट इज अबाउट द फील्ड नॉलेज इन विच ही इज सेलेक्टेड। मान लीजिए एक कोई कंप्यूटर ऑपरेटेड के लिए हमने लिखा है, तो कंप्यूटर ऑपरेशन की उसको कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है, हाउ मच नॉलेज ही हैज अबाउट हार्डवेयर, हाउ मच नॉलेज ही हैज अबाउट द सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। सो उसके बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज अ ट्रेड टेस्ट। अगर एक आदमी मार्केटिंग के बारे में कर रहा है तो उसको मार्केटिंग की कॉन्सिक्वेंसेस कैसे पता है, मार्केटिंग के स्किल्स पता है कि नहीं, तो ये सब चीजें हम ट्रेड टेस्ट में पता करते हैं। नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब अदर फील्ड्स। अदर फील्ड का मतलब कि एक मार्केटिंग मेंबर है, क्या वो फाइनेंस की भी कुछ नॉलेज रखता है कि नहीं, परचेजिंग और प्रोडक्शन के बारे में कुछ उसको नॉलेज है कि नहीं, दैट मीन्स दैट विल बी टेकन, दैट विल बी मेजर इन interest test. So this is the 5 type of tests are there. This is the key points that I mentioned here. So note down it, learn it thoroughly. That is the most important topic of your examination point of view. So this is the topic of today. Bye bye.